Right. Namaste, everyone. Welcome to day 3 of the Raj Yogi Power of Breath Foundation's Three Dosha Balancing 5. And today is, of course, day 3. In the earlier days, we practiced the huffing technique first, followed by the complete yogic breath technique. And then we also did what is called Hanuman Master Breath. If you've been doing all these practices regularly, regularly it's well, we haven't done it for too long, but anyway, if you've been doing them, you will notice that there is an improvement in the quality of your breath. However, anyone with a challenge, with a difficulty in their breath, like I said earlier in the first 2 days, go gentle, go easy, let your body get used to it, and then increase the intensity. But one thing is clear, I also had a condition called COPD, chronic obstructive pulmonary disease. It's a serious, very serious condition. And I had it because of my own lifestyle. Like I said earlier, I was a heavy smoker, and naturally I paid the price. But luckily for me, I was able to repair and recoup much of my respiratory health and lung function despite not having to go on medication, though the doctors were insisting that I start on medication, inhalers and all that. But anyway, so that said, one second, I'll have to mute. Just a minute, hold. Yes, I'll have to mute everybody. In case you wish to speak, please unmute and then carry on. So the first day we worked on belly breathing. I hope everyone is able to do their belly breathing well. Yeah, please turn on your video so I can see you and also talk to you when needed. And it just gives a better connection with the participants. So the first day we started with belly breathing. I trust आपका belly breathing अच्छे से हो रहा है. Anyone having difficulty with their belly breathing? Please answer me. Anyone having difficulty with the belly breathing? No, not at all. So is it becoming part of your regular breathing method? The more we belly breathe, the more easily we get into the parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system is the ideal solution to lot of physical, mental, emotional problems. The moment we are in the parasympathetic nervous system, the body is able to repair itself, heal itself, get into a state of ease, and therefore perform much, much better than otherwise. Belly breathing is key. There are so many conditions that can be reversed just with belly breathing. It's so, so useful. Therefore, in all my programs, I start with belly breathing. You've got to do your belly breathing. Let it become your default breath. And then you build on the other breathwork techniques. Breathwork can be very powerful. Uh, in fact, today somebody sent a message about how she had some pain in the shoulder region, etc. And then as she was doing the kriyas yesterday, she felt the pain go away. Yesterday, Anurag ji mentioned about how he was having some pain and then he felt some relief in the pain as well. And that was, of course, yesterday because we were doing though I didn't explain it in detail, but we had started with what is called the Hanuman Master Breath. In Hanuman Master Breath, you channel your breath, both the in breath and the out breath, up the spine. As your breath begins to go up the spine, it may go for some, it may not go for some, it may go for some very easily, it may not go for some very easily, but at least that process can begin. As you begin to use your sushumna, that is because that is the Hindi bolo ki Angrezi bolo? Hindi, English, both are okay? No? So as you continue to use your sushumna nadi, it starts affecting, namaste, Kishorji, it starts impacting your central nervous system because the sushumna is connected to the brain and
comprises the central nervous system. If your central nervous system is in a better state of health, it will have a positive impact on all areas of life. All areas of life. I repeat, all areas of life. Physical, emotional, mental, even other areas, material aspects as well. All will be impacted just by breathing better. Like I said, belly breathing is the foundation. Then we did the huffing technique to help ease out, bring out as much phlegm और म्यूकस और एज वी कॉल इट कफ इन हिंदी. तो जितना वो अच्छे से करेंगे, कफ की मात्रा लंग्स में कम होने लग जाएगी. It'll start clearing out of the airways, the lungs, and so on. And the more it clears, naturally, the phlegm in the respiratory system creates like a barrier. It makes like a lining, collects in different parts of the lungs. So when it creates that kind of a barrier, the exchange of gas in the lungs is interfered with. That doesn't happen very well. The body needs to absorb the oxygen, give out the carbon dioxide. So this is why you find people with asthma, COPD, and even other conditions like ILD, etc. They find that they are short of breath. They are short of breath, though they are breathing a lot. They feel they are short of breath because uh, the breath as per se is going in, but it's not doing what it's supposed to do. So you feel out of breath. Similarly, people who have these conditions, if they do any kind of physical activity, they tend to go out of breath very, very quickly. So the more you are able to clear out the phlegm, the mucus from your respiratory system, the more the gas exchange will happen with relatively greater ease. When it happens with relatively greater ease, obviously it means your body is able to absorb what it needs and give out whatever is not needed anymore. So huffing technique was the first part. Huffing technique has three parts. The first is just the huffing repeatedly without inhaling. सांस लिए बिना repeatedly exhale करना with the mouth open. I'll show you once again. I've taken a slow, full, deep breath. And then I go one. I'm not breathing. I've relaxed my belly. Again, I go. I've relaxed the belly. I'm not breathing. A third time. Four. Breathe in. So this is the basic huffing technique. The second part of the huffing technique was you do the squeezes along the front. You start in the lowest part of your belly, do the squeeze there, and progressively keep bringing it higher. Continue squeezing because that helps to compress the lungs a little more. Remember, the lungs don't have muscles of their own. The action on lungs happens through the diaphragm and the other chest muscles, etc. We can create a squeeze effect inside our body. When the squeezing effect happens, it tends to, in a way, massage, move the lungs, and that dislodges any phlegm that may be lying in that area. And then you get a reflex, you get a coughing reflex, you get a sense that you need to cough. And the coughing reflex means this phlegm is coming into your airways or moving in that direction. And therefore, you get this coughing reflex. So when the coughing reflex happens, you can cough your phlegm out or gargle. Gargling can also help. The second part of this technique was the complete yogic breath, which we did, yes. No, the third part of the huffing technique was the squeezes along the back. Start in the lowest part, squeeze there, and take it progressively higher. Is that right? Are we clear? Is these parts very clear to you? Huffing technique with its three parts, and earlier the belly breathing. So I trust belly breathing is happening well for everybody, and the huffing technique is also happening well. ठीक है? Give me a confirmation, a thumbs up or yes or whatever. जी, थैंक यू दिनेश जी. हिंदी में बोलूँ राकेश शर्मा जी. हाँ,
तो मैंने पूछा था पहले, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, तो मैं अंग्रेजी में बोलता रहा। तो वही रिपीट कर रहे थे व्हाट वी हैव डन बिफोर, हाउ टू डू द हफिंग टेक्निक। उसको फिर से रिव्यू किया सो दैट यू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर क्लियरली। फिर कल अपन ने किया, पहला तो कंप्लीट योगिक ब्रेथ। कंप्लीट योगिक ब्रेथ में क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू इन कंप्लीट योगिक ब्रेथ इज let your breath go as low as it can go. Some people can feel that in breath till the pelvic region, till the Mooladhara area generally. Some can feel it a little higher. Doesn't matter. Whatever this point is, as low as it goes. जितना नीचे आपकी सांस जा सकती है, जाने दीजिए। वहां से भरते 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 ऊपर चेस्ट तक ले आइए। पूरी भर गई। एंड देन ब्रिंग योर अटेंशन टू द टेल बोन। टेल बोन से धीरे धीरे सांस छोड़िए अप द स्पाइन। स्पाइन के रास्ते, ये आपका सुषुम्न का रास्ता होगा। सो व्हेन यू ब्रिंग योर अटेंशन टू द टेल बोन एंड यू अलाउ द ब्रेथ टू मूव आउट स्लोली अप द स्पाइन, इट विल कम अप द स्पाइन एंड देन कम आउट थ्रू द नॉस्ट्रल्स। ये आपने किया पहले, जस्ट विद द फिलिंग अप द होल ब्रेथ। उसके बाद में पूरा ब्रेथ ले लिया। द फुलर योर ब्रेथ द बेटर। द मोर यू ब्रीद आउट द बेटर। जितनी सांस अंदर लेंगे अच्छा, जितनी सांस बाहर निकाल देंगे उतना अच्छा है। इससे क्या क्या लाभ होगा? एक तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यू विल बिगिन टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर लंग, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल अपनी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई, यानी कि मूवमेंट बहुत कम है, एक्सरसाइज कम है, और पूरी लंग को अपने उस हद तक व्यवहार नहीं करते जितना करना चाहिए। तो बिकॉज वो नहीं करते, तो धीरे धीरे लंग की कैपेसिटी कम होती जाती है। एंड देन पोल्यूशन यहाँ पे इतना रहता है, विशेषकर शहरों में वगैरह, इतना पोल्यूशन रहता है कि वो फ्लेम, कफ अपने फेफड़ों में भरती जाती है, भरती जाती है, श्वासकोश में भरती जाती है, और वो निकलती नहीं है क्योंकि मूवमेंट होता नहीं है ज्यादा। तो इसलिए यू विल नोटिस anyone with any kind of illness which takes him to hospital, आजकल विशेषकर मिडिल एज तक आ गए, 50 55 60 की आयु हो गई, और यदि अस्पताल जाना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट एवरी वन इज टेकन ऑन टू द वेंटिलेटर मशीन। ने सुना होगा कि बहुत लोगों को आजकल वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। कोविड के बाद में दिस इज इंक्रीज्ड, बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहले तो ये होता था कि यदि किसी को वेंटिलेटर पे डाल दिया तो डर लगता था कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। बट अब शायद टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई है, इक्विपमेंट इंप्रूव हुआ है, तो पीपल डू कम बैक। बट इवन सो देर आर अ लॉट ऑफ सैड स्टोरीज और ट्रेजेडीज एज वेल। We can blame others, we can blame doctors and hospitals and all, and maybe sometimes they have done something wrong, I don't know. बट अपन खुद के सेहत को यदि संभाल के रख सकें, और लंग्स, श्वास सबसे निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है अपने जीवन का, इसे यदि अपन साध सके, थोड़ा समझ सके, अच्छा कर सके तो अपन को इसकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। रिमेंबर, आई कीप सेइंग, टू ब्रीद बेटर इज टू लिव बेटर। श्वास आपकी जितनी अच्छी होती जाएगी, आपके जीवन के हर स्तर में, हर जगह उसका लाभ मिलता जाएगा। सो दिस द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्निक। अभी 5 7 मिनट लीजिए और ये टेक्निक्स को थोड़ा अपने आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस, पहले तो बेली ब्रीदिंग होने दीजिए, उसके साथ में पूरी सांस लीजिए, हफिंग टेक्निक कर लीजिए थोड़ी देर। उसके बाद में कंप्लीट योगिक ब्रेथ वाली टेक्निक करिए विद द स्क्वीजेस, करिए, और मुझे बताइए अच्छे से हो रहा है। यदि मन में कोई डाउट है, बिकॉज टुडे इज डे 3 ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, तो इस विषय को आप डिटेल में अपन और नहीं जाएंगे, आप फिर एडवांस कोर्स में और आगे की चीजों पे जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा जो लोग भी आगे के एडवांस कोर्स में जुड़ते हैं, वो इस लेवल तक का अच्छे से समझ जाएं कि इसका अच्छे से व्यवहार कर सकें। तो करिए, एक बार अपने आप करिए, ऑब्जर्व करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इफ देयर इज एनी एरिया दैट इज नॉट क्लियर, यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन देयर, लेट मी नो। करिए करिए, अपने आप करिए, सब कुछ। टर्न ऑन योर वीडियो सो आई कैन सी यू।
नहीं करते होंगे तो आपको इसी के प्रेशर में थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए चलिए, किशोर जी, सेजल जी, अविनाश जी, आशु जी, आदित्य जी, मीना जी, विद्युत जी, राम प्रसाद जी, धनवंती जी, AR23 जी, राधा नायर। हाँ, करिए करिए, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। मुझे देखने दीजिए आप क्या कर रहे हो, कितने अच्छे से कर रहे हो। पूरी सांस लीजिए, जितनी सांस ले सकते हैं अच्छे से लीजिए, और जो बताया अच्छे से करिए। जब हफिंग करते हैं ना, जितना शरीर मानता है आपको, जितनी अच्छे से कर सकते हो उतनी जोर से करिए। आपका शरीर यदि उसको एक्सेप्ट करता है, इफ द बॉडी इज नॉट कंफर्टेबल, स्लो डाउन देन, अदरवाइज डू अ लिटिल मोर। जिनकी आयु थोड़ी कम है, जिनकी सेहत अच्छी है, दे कैन डू अ लिटिल मोर इंटेंसिवली। थोड़ा ज्यादा प्रेशर करेंगे, एंड बिलीव मी, इट वोंट हार्म यू। आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो भी इट वोंट हार्म यू, बट तब भी आई वांट यू टू बी कॉशियस, बिकॉज फिर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स। माइंड फिर अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैरी ऑन। तो करिए, सारी की सारी क्रियाएं करिए, और मुझे बताइए इसमें कोई परेशानी हो रही है क्या। यदि कोई प्रश्न है, कुछ भी डिफिकल्टी है तो पूछिए। अनुराग जी, यू वांट अ डिफर्ड कंट्रीब्यूशन। इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट नाउ, आपकी इच्छा, नो प्रॉब्लम। You'll have to send me a request and on WhatsApp, and then I'll add you to the list. तो अभी तक एक ही, सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन करने वाले जुड़े हैं। आप लोग कर रहे हैं, आप प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो सो आई कैन सी यू। आप दिखोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो। पूरी ब्रेथ लीजिए, अच्छे से करिए। ऑब्जर्व करिए आपका शरीर क्या बोल रहा है। कुछ फ्लेम निकल रहा है, कुछ म्यूकस निकल रहा है, खांसी आ रही है। सारी क्रियाएं करिए, और बताइए कहीं में कुछ गैप है, कुछ समझ में कम है तो पूछिए। ओम। बताएं, करते रहिए, बताइए कहीं भी कुछ भी प्रश्न हो तो बताइए। ओम। नहीं हो रहा है अभी तक। क्या नहीं हो रहा? अनम्यूटेड एवरीबॉडी। फिर किसी को बोलना हो तो अनम्यूट करिएगा। ओम। डॉक्टर रीटा, कर रहे हो आप? दिनेश जी कर रहे हैं। अनुराग, आई कांट मेक आउट। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। हनुमान ब्रीथिंग में जब एक्सप्रेशन करते हैं तभी पे हफिंग करना है, जस्ट ब्रीथ आउट करना है। सी, हनुमान मास्टर ब्रेथ का टेक्निक मैंने कंप्लीट योगिक ब्रेथ के साथ सिखाया है ना। तो यदि आप हफिंग करोगे
तो then huffing is the breath is coming out from the front. You can't do Hanuman master breath with that. However, however, for the in breath you can do it. जब आप हफिंग के लिए इन ब्रेथ ले रहे हो, उस समय टेलबोन से ऊपर की तरफ ले जा सकते हो सांस। सामने भी सांस भरेगी, पीछे भी सांस भरेगी। किंतु जब आप हफ करोगे, तब वो सामने की तरफ से ही सांस निकलेगी। ओम। करिए करिए, प्लीज करते रहिए, तभी लाभ मिलेगा। बातों से नहीं होगा लाभ, आपके करने से आपको इसका लाभ मिलेगा। करना इज इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद तो मैं गाइड नहीं करूंगा। जब तक प्रोग्राम है, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए इसका लाभ उठाइए। अभी मैं आई एम हियर लाइव इन योर प्रेजेंस, इसका पूरा लाभ उठाइए। हम्म। किसी का कफ निकल रहा है आज भी? एनीबडी फीलिंग कि फ्लेम निकल रहा है, कफ निकल रहा है? बताएं। अभी निकल रहा है आपका दिनेश जी? कल तो नहीं निकल रहा था ना आपका दिनेश जी? हाँ, आज निकल रहा है, वेरी गुड। मीना जी, आपका भी निकल रहा है कफ? बहुत अच्छा। और किसका निकल रहा है? हाँ, सारंग जी, आपका निकल रहा है? कुछ बोलना चाहते हो? प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट करके बोलिए। जी। जुकाम हो गया सर, छींके आ रही है बहुत ज्यादा। बुखार जुकाम ज्यादा हो गया? तो हाँ। कंप्लीट ये सब टेक्निक्स करेंगे तो जुकाम में कम से कम सांस लेने में सुविधा हो जाएगी। यू विल फील योर ब्रीदिंग इज बिकम इजियर। और यदि आप पानी सोच रहे, पीता है। एक सेकेंड, यदि आप सोचते हैं कि जुकाम इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये किया, तो वैसा नहीं है। इन क्रियाओं के कारण से आपको जुकाम नहीं हुआ है। जी। जी, नहीं, कुछ बोल रहे हैं? जुकाम तो अच्छे ही होता हाँ। रहता है। जी। प्रणाम गुरुजी। मैं कल सवेरे कर रहा था, मतलब मैं 4-5 बजे करता हूँ यूजुअली। तो कल सुबह हम्म। मैंने मतलब फर्स्ट डे परसों अटेंड किया और कल सुबह मैंने ट्राई किया, तो हम्म। सुबह काफी कफ निकला मेरा। बहुत लेकिन मैं अच्छा। अभी शाम को करता हूँ तो शायद वो हम्म। खाना का ये होगा, तो इधर एसिडिटी जैसा गले में जलने का सेंसेशन आता है, हम्म। हम्म। वो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन सुबह हम्म। क्लियरली कफ निकल जाता है। तो द वन थिंग दैट हैपेंस इज, जब दिन भर आप अपने दिनचर्या में चल रहे हो, काम कर रहे हो, बॉडी में स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। जहां स्ट्रेस बनना शुरू होगा, आप देखोगे कि बेली ब्रीदिंग भी आपकी कम हो गई है। स्ट्रेस होगा, पेट में टाइटनेस होगी। जहां पेट में टाइटनेस होनी शुरू हुई, ये सब एसिड और ये सब इन तरह की चीजों का इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा शरीर में। सो देयरफॉर हाँ। आइडियली सुबह के समय करें, कम से कम उस समय सो के उठे हैं, तो बॉडी हाँ। रिलेटिवली रिलैक्स्ड है। तो इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, यदि पेट टाइट है तो भी। पेट को तो रिलीज करते रहें तो अच्छा है। जितना आसान रखें बेली ब्रीदिंग, जितना करेंगे, एसिड रिफ्लक्स वगैरह आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा आपको गारंटी है। नो मैटर व्हाट योर कंडीशन इज, सिर्फ बेली ब्रीदिंग से एसिड वगैरह में बहुत आराम मिल जाएगा। फिर जब बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं और बॉडी इज इन अ रिलेटिवली गुड स्टेट, फिर आप ये करोगे तो आपको इस तरह की परेशानी होगी नहीं कुछ दिनों बाद। शुरू शुरू में, बिकॉज द बॉडी इज कमिंग आउट ऑफ वट एवर कंडीशन इट इज नाउ इन, तो कुछ समय लग सकता है, बट आगे जाके आपको बहुत आराम मिल जाएगा उसमें। मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि सुबह मैं जब उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो मेरा सब क्रियाक्रम होने के बाद जब मैं ये करता हूँ तो क्लियरली कफ निकलता है। लेकिन अभी मैं शाम को कोशिश करता हूँ तो वो एसिडिटी रिफ्लेक्स, और खास करके मैं 4-5 बजे चाय पीता हूँ, तो मेरे हम्म। ख्याल से वो अभी करने का टाइम मुझे वो ज्यादा तकलीफ हो रहा हम्म। है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में कुछ हम्म। प्रॉब्लम ही नहीं होता है तो क्योंकि भाई मेरा पेट एम्प्टी हो जाता है। उसी बात का तो मैंने आपको उत्तर दिया, उसी हाँ। के हाँ। बारे हाँ। बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। हाँ। तो सुबह करिए, अच्छा समय है वो, खाली हाँ। पेट में बेस्ट रिजल्ट्स। वही मुझे, क्योंकि मैं अभी शाम को कर रहा हूँ, अभी मैंने आपके साथ करने का कोशिश किया तो यहाँ पे पूरा जलने का पूरा सेंसेशन इमीडिएटली आ जाता है गले में। मैंने एसिड एसिड की प्रॉब्लम नहीं, नई नहीं आपके लिए, पुरानी प्रॉब्लम है ये। दिस इज समथिंग यू हाँ। हैड फॉर सम टाइम। हाँ जी। या वो हाइपर एसिडिटी कभी कभार होता है, लेकिन हम्म। वो अगर मैं उसको एग्रेवेट नहीं करूँ तो साइलेंट रहता है। लेकिन एसिड और गैस ये है, डेफिनेटली तो है। बेली ब्रीदिंग करेंगे तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। हाँ। गुरुजी ये देखिए, अगर मैं ऐसे करूं। थैंक यू गुरु जी।
प्रश्न क्या? तो ये ठीक हो रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। सर तो कैसे, मतलब मैं क्या गलती कर रहा हूँ? 3 दिन से दिखा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं क्या बताऊं आपको। दिनेश जी आप बताइए, अनुराग जी को कैसे करना है, कृपया करके। दिनेश जी, इसको क्या मुंह खोल के एकदम ऐसे करना है क्या? तरीके से छोड़ हाँ, जैसे कपालभाति करते हैं? नहीं इसमें नहीं कपालभाति कहाँ से आ गई? मुंह खोल के थोड़े जोर से करना, दैट इज ऑल। खाली इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा जोर लगाना है। नमस्ते रचना जी। तो अभी कल और परसों जो किया उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। हाँ राधा जी, आप कुछ बोल रहे हो, डॉक्टर राधा? Today in the morning, I had motions हम्म and lot of cough I could see in the motion. Actually, it is not, I'm not able to get it from here, but I told you there is something, um, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन I'm not able to spit outside. सो वेरी ऑफन व्हाट हैपेंस इज, जब फ्लेम का फॉर्मेशन होता है अपन गले तक खींच लेते हैं, करके गले तक खींच लेते हैं, फिर उसको स्वॉलो कर जाते हैं। Right. शायद आप ऐसा करते होंगे। तो therefore you will feel that it is in a part of your included in your excretion. Yeah, today in the morning, I could see that, But it anyway, was just, see, ये phlegm जो होता है ना, mucus वगैरह जो होता है, this is formed in the body in many areas. okay, तो यदि digestive system में है थोड़ा phlegm ज्यादा, तो my attention is not on that so much. My okay, attention is on phlegm in the respiratory system. okay, बिकॉज द आई सी, बॉडी में यदि फ्लेम हो रहा है तो इट्स नॉट एज इफ द बॉडी डजंट नीड इट, कुछ आवश्यक है शरीर के लिए, दैट इज व्हाई द बॉडी क्रिएट्स इट। right, right, तो true, तो वट एवर इज देयर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा, आई एम नॉट, माई अटेंशन इज नॉट देयर, आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट दैट। right, माई फाइट इज अगेंस्ट द फ्लेम म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। okay, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% क्लियर हो जाएगा, ये भी नहीं बोलता हूँ। आप देखो, आई कीप सेइंग कफ रिडक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिडक्शन की बात करता हूँ। hmm, पार्ट ऑफ द रीजन इज हर एक का शरीर का एक टेंडेंसी है टू क्रिएट फ्लेम, एक तो वो चीज है। और सेकेंड चीज इज whenever whenever we are in an environment where there is pollution etc, the body will automatically create a little more mucus. okay, जब सर्दी लगती है, ठंड लगती है, शरीर में ठंड लगती है, even then this will happen. okay, So the body creates flame because for the body it's a kind of a defense mechanism. Problem is when the body creates too much flame, especially in the respiratory system, then it becomes a challenge because फिर अपनी breathing की प्रक्रिया में वो interfere करता है। So this is whatever you are learning today is not something that you do only for 2 days, 3 days and you are cured for life. ऐसा नहीं है। This is like a tool that is coming into your hands. एक एक हथियार है आपके पास में जिससे कि आप अपने ब्रीदिंग को रेगुलर बेसिस पे कुछ 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 इंप्रूव करते जाएं। यदि कफ नहीं भी हो फिर भी थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आप देखोगे कि कफ निकल रहा है, फ्लेम निकल रहा है, कुछ ना कुछ निकलते जा रहा है। और धीरे धीरे आपकी श्वास की क्वालिटी में आपको एक साइजेबल इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। मेरा त्रिदोषा बैलेंसिंग के ऊपर में अटेंशन नया नहीं है। दिस द प्रोसेस स्टार्टेड मेनी इयर्स अगो, और शुरू में जब करा तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग सम ऑफ दिस थ्रू एस व्यासा, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, द योगा यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर।
उनके थ्रू सिखाया। किंतु जैसा रिजल्ट मैं सोच रहा था मिलना चाहिए, मुझे उतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा नहीं था प्रैक्टिशनर्स के साथ में। तो मेरे सिखाने में भी शायद कहीं कुछ गैप्स हो, कहीं कुछ कमी हो, और मेरे को भी कुछ समझने में शायद कहीं कुछ कमी हो। तो मैंने एक बार उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बट आई कंटिन्यूड माई सर्च, आई कंटिन्यूड माई ऑब्जर्वेशन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको और ठीक किया जाए। तो करते करते करीब 8-9 महीने पहले मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट जब मिलना शुरू हुआ, देन आई स्टार्टेड शेयरिंग द त्रिदोषा बैलेंसिंग प्रोग्राम अगेन। त्रिदोषा बैलेंसिंग में फिर मैंने श्वास को शुद्धि क्रिया को इंक्लूड कर लिया, सो दैट वी आर एबल टू थ्रो आउट एनी फ्लेम दैट इज कलेक्टेड, एंड देन आफ्टर दैट वी फोकस ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्लेम दैट द बॉडी फॉर्म्स। आई एक्सपेरिमेंट विथ माई बॉडी। मैं आई ट्रीट माई बॉडी एज अ लेबोरेटरी। तो आई ट्राई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। देखता हूँ हाउ फार आई कैन पुश द लिमिट्स ऑफ माई बॉडी, अलग अलग तरह से, एंड सो ऑन। तो उससे क्लैरिटी भी आती है और अंडरस्टैंडिंग भी आती है, टेक्निक्स भी और साफ होती हैं। एंड व्हेन आई सॉ दैट आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले मेरा शरीर एकदम एक्सेप्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नेवर ड्रिंक एनीथिंग कोल्ड, पीता ही नहीं था कुछ भी ठंडा। बट दो दो आई टीच ब्रेथ वर्क, मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट आई एम फॉन्ड ऑफ दैट ओकेजनल ड्रिंक लाइक अ चिल्ड बॉटल ऑफ बियर। तो बहुत सालों से नहीं पी, छूता ही नहीं था। बट अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट के दायरे के अनुसार मैं आई वुड हैव अ चिल्ड बॉटल ऑफ बियर एवरी डे टू सी व्हाट माय बॉडी वाज सेइंग, हाउ माय बॉडी वाज रिस्पोंडिंग, एटसेट्रा। एंड देन आई सॉ कि ठीक है, कभी कभी जब रेगुलरली कुछ दिन पीता हूँ, ठंडी बियर पीता हूँ, तो बॉडी में कफ बनता है थोड़ा, बट आई कैन क्लियर इट वेरी फास्ट। बट द बॉडी विल एक्ट द वे इट विल एक्ट। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कफ होगा नहीं। कफ तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑल यू डू, क्या कंज्यूम करते हो, ठंडा पीते हो, कोकोनट वाटर पीते हो, दही खाते हो, तो दीज थिंग्स विल क्रिएट फ्लेम इन द बॉडी, कांट हेल्प इट। दैट्स द चैलेंज। बट फिर भी मैं तो करते जाऊंगा, अलग अलग चीज ट्राई भी करते जाऊंगा, और आप लोगों को सिखाऊंगा भी, जिससे कि फ्लेम का प्रोडक्शन इतना कम हो जाए कि यू फील हाँ कि बहुत बड़ा फर्क पड़ गया ना। हाउ डू यू नो कि बहुत बड़ा फर्क पड़ गया? जैसे कि देर वॉज अ टाइम व्हेन इन द मॉर्निंग आई जस्ट हैड टू गार्गल एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। नहीं तो सारे दिन भर बोल भी नहीं सकता था ठीक से, आवाज बहुत भारी लगती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी होता कई दिन नहीं भी करता हूं तो भी चल जाता। बट देन यू नो कभी कोकोनट वाटर पी लेता हूँ, कभी दही खा लेता हूँ, दूध से भी होता है, शुगर केन जूस से होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना जैसे थम्स अप, कोका कोला वगैरह, वो सब तो मैं पीता ही नहीं था, बट इन दिनों में वो भी पी लेता हूँ ठंडा। सो आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट ऑल माय बॉडी इज एबल टू हैंडल एंड डील विथ। ठीक है, तो ये यहां तक का आपका हो गया। आई ट्रस्ट अभी तक का आपका कोई प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, सो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द श्वासकोश शुद्धि क्रिया। इसमें वी विल एम्प्लॉय अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, एंड कंबाइन इट विद द श्वासकोश शुद्धि क्रिया टेक्निक्स। तो श्वासकोश शुद्धि क्रिया टेक्निक्स क्या है? जो ब्रेथ आप छोड़ते हो एक बार, उसको 3-4 बार करके छोड़ना। मैंने पहली बार ऐसा नहीं कि पूरी ब्रेथ नहीं छोड़िए, यू हैव टू ट्राई टू एक्सपेल एज मच एयर एज यू कैन। फिर थोड़ा रुकेंगे, पेट को रिलैक्स करेंगे, फिर से एक्सपेल करेंगे। सो दैट इज द टेक्निक। 3 बार 4 बार जितना आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है, कोई फिक्स नंबर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एवरीवन्स बॉडी इज डिफरेंट। सो नाउ वी विल कंबाइन दिस विद द अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन टेक्निक। पर नाड़ी जस्ट सर, शोधन, अब रुकेंगे, अगर रुकेंगे हम तब तो फिर सांस अंदर चला जाएगा ना हमारा, एक ही ब्रेथ में नहीं हो पाएगा 3-4 बार। जैसे आपने बोला ना थोड़ी देर रुकेंगे और फिर करेंगे। तो जब आपने हफ किया तो आपने 3 दिन में सीखा क्या फिर रचना जी? मतलब मैं प्रैक्टिस उसको कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो पता नहीं मुंह से चला जाता है या क्या होता है, ऐसा लगता है मुझे ऐसा। यदि लगता है वैसा, तो आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि नहीं अभी सांस लेनी नहीं है।
थोड़ी सी आ जाती है तो इट्स नॉट एज इफ इट्स गोइंग टू किल यू, वैसी कोई बात नहीं है। किंतु हमें जब जो करना है वो अच्छे से होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किस लिए करते हैं बार बार बिना सांस लिए? वाई डू वी ट्राई टू एक्सहेल अगेन एंड अगेन रिपीटेडली? One thing is to empty the lungs of all the earlier or stale air as much as possible. Number one. Number two, उसके साथ में कहीं अलग अलग जगह में जो भी फ्लेम वगैरह जुड़ा है उसको हिला के बाहर की तरफ निकालने के लिए करना। सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, करते करते अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। सो देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स दैट हैपन अलोंग द वे। Okay, thank you. एक्सक्यूज मुझे भी कुछ पूछना है। सर मुझे भी कुछ पूछना है। जी पूछें, मैं अवश्य पूछें। आशा रोड़ा हल्द्वानी से हूँ। जी अच्छा, मैंने सोचा आप योगा वगैरह करवाते हैं, तो ये आप जो हमारी फिजिकल जो तकलीफ है इसके बारे में समझाते हो, है ना? मैं श्वास के बारे में समझाता हूँ, और ये अच्छा है वाला ना। प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इसमें इज जो टू, अभी एक मैम ने बोला ना, उनको कफ का बहुत ये रहता है, ये वही तो पता वही तो चल। सिखा रहा हूँ। हाँ, तो रामदेव जी ने ये तो 2002 में जब इनके शुरू हुए थे शिविर, हम तो तब से करते हैं, टीवी में बहुत आता अच्छी है तो बात है। लोग, आपका सिर दर्द होता है तो लोम लोम करने से ठीक हो जाता है सिर दर्द। एक सेकंड, एक सेकंड, आपका प्रश्न क्या है? मेरे मेरा तो अपना प्रश्न, मैं तो मेरे को, आप तो उसके लिए कह रहे हैं ना कि भाई श्वास के लिए, मेरे को तो पेट से संबंधित गैस बनती है। श्वास की मेरे बहुत को तरह की गैस, क्रियाएं। गैस की एक सेकंड प्रॉब्लम। मैडम, एक सेकंड मैडम, मैं, ये प्रोग्राम गैस के प्रॉब्लम के लिए नहीं है। अच्छा। ये प्रोग्राम है श्वास को इम्प्रूव करने के लिए, कफ को निकालने के लिए, अस्थमा का किसी को प्रॉब्लम है तो उससे कंट्रोल करने के लिए, अस्थमा तो और नहीं है, सीओपीडी। लेकिन वो है मेरे को कि बलगम तो है मेरे को, कई बारी आती है, उछल के तो आ जाती है ऑटोमेटिक। एक सेकेंड आशा जी, टुडे इज डे 3। अब डे 3 में आके डे 1 के क्वेश्चंस पूछोगे तो बाकी सबका समय नष्ट होगा। मैं तो आज फर्स्ट डे आई हूँ तो मुझे नहीं उसके लिए पता मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो ग्रुप में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज नहीं, बलगम, तीसरा दिन है, बलगम वो भी है। आधे आधा सेशन होने के बाद में आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। सॉरी आशा जी, आपको अब सुनिए, जितना सुन सकते हैं। पहले की जो वीडियोस डाली हुई हैं, वीडियोस देख के जितना आप समझ सकते हो समझो। अभी इसके बारे में और चर्चा नहीं करूंगा, हाँ। बिकॉज जो जिनको आगे ले जाना है उनको आगे ले जाना है। इन्होंने 2 दिन समय दिया, 2.5 दिन समय दिया है, अभी इनको और आगे ले जाना है। ठीक। ठीक है आशा जी, राम राम। सो डे 3, अब इसका अ, अनुलोम विलोम के साथ में श्वास को शुद्धि क्रिया के टेक्निक्स को अपन को कंबाइन करना है। अनुलोम विलोम करने के लिए पहली 2 उंगलियों को ऐसे कर लीजिए। हाँ, मालूम नहीं, आपको सब पता है आशा जी, किंतु आप है। सुनिए थोड़ा। सब सब पता है, मैं मानता हूं। तो सबको सब शायद नहीं पता हो, काइंडली हाँ, सुनिए। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, फिर घुमा लीजिए अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे, और ये रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। इसको एक बार ऐसे करिए थोड़ी देर। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है, दूसरा आता है एक जाता है। तो दिस मूवमेंट शुड बी इजी। अनुलोम विलोम सब करते हैं थोड़ा बहुत, सबको, एवरीवन इज फेमिलियर विद अनुलोम विलोम। सम ऑफ यू आर, कुछ लोग कुछ मेरी नहीं तो बोल रहे हैं। मेरी तो तो कुछ को, डाइट है। आशा जी प्लीज, आप आज 2.5 दिन के बाद में आप थोड़ा सुनो, हाँ आपसे आशा एक जी, एक आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, हाँ म्यूट कर प्लीज लीजिए म्यूट कर आप। लीजिए अपने आप को, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। आप हाँ बार सर, बार आप म्यूट बोलोगे, कर लीजिए। समय कम है ना, फिर आगे काम नहीं होगा जी। तो इस तरह से करिए। पहले बाई नासिका से सांस छोड़िए बाहर, धीरे धीरे छोड़िए। फिर बाई से लीजिए, बाई को बंद करके दाहिने से छोड़िए। पूरी चली गई, फिर दाहिने से लीजिए। पूरी आ गई, बाएं से छोड़िए।
पूरी चली गई, बाएं से लीजिए, बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। ये बेसिक अनुलोम विलोम है ना, जिसे अनुलोम विलोम बोलते हैं। इसमें नाड़ी शोधन जब करते तो थोड़ी सी कुंभक करते हैं। जब इन ब्रेथ ले ली, थोड़ा रुक गए, फिर आउट ब्रेथ के बाद में थोड़ा रुक गए, तो ये फिर नाड़ी शोधन का काम करता है। माने थोड़ा स्मॉल डिफरेंस, बट एनीवे इसको अपन अपने श्वास को शुद्धि क्रिया के टेक्निक्स के साथ में कैसे यूज करेंगे। तो मैंने दाहिने को ब्लॉक किया, बाएं से एक बार सांस छोड़ी, पूरी सांस चली गई, रुक गया, पेट को रिलैक्स किया, थोड़ा और छोड़ा, फिर पेट को रिलैक्स कर दिया, थोड़ा और छोड़ा, फिर बाएं से सांस ली, बाएं को ब्लॉक कर दिया, दाहिने से छोड़ा, पूरा छोड़ दीजिए। जब छोड़ते पूरा, पेट को ज्यादा टाइट मत करिए, बस आराम से पूरी सांस निकलने दीजिए। पूरी सांस निकल गई, रुकिए, फिर छोड़िए, पूरी चली गई, रुकिए, पेट को थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, दाहिने को ब्लॉक करके बाएं से छोड़िए, पूरी छोड़ दीजिए। जब पूरी छोड़ गई, तब थोड़ा रुकिए, पेट को रिलैक्स करिए, फिर छोड़िए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना होता है। इस साइकिल को थोड़ी देर रिपीट करते जाइए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार होता है। पूरी सांस छोड़िए, सांस को रोकिएगा मत, पूरी चलेगी। खाली पेट को अधिक टाइट मत करिएगा, नॉर्मल सांस छोड़ने में जितना पेट अंदर की तरफ जाता है उतना ठीक है, उससे अधिक नहीं। तो ये हुआ अनुलोम विलोम के साथ में बेसिक श्वास को शुद्धि क्रिया। इसका इसका इस क्रिया का नाम है कृष्णाज फ्लूट मनूवर। मनूवर माने करने का एक तरीका। कृष्णा, कृष्ण भगवान सब जानते हैं। फ्लूट, फ्लूट में 7 होते हैं वो, है ना। सिमिलरली अपने शरीर में भी 7 मेजर चक्र हैं, है ना। तो दैट इज द आइडिया दैट वी यूज फॉर दिस। अभी कैसे करना है, जब आपने सांस पूरी ले ली, पहले बाएं से छोड़ दीजिए पूरी, पूरी फिर सांस ले लीजिए। अब दाहिने से छोड़ रहे हैं, पूरी छोड़ दी, फिर और छोड़िए, फिर और छोड़िए, फिर से और छोड़िए, फिर दाहिने से ले लीजिए, दाहिना ब्लॉक करके बाएं से छोड़िए। अब जब छोड़ते पहले पूरी छोड़ दीजिए, जब सेकेंड टाइम छोड़ते तो स्क्वीजिंग करना शुरू कीजिए अलोंग द फ्रंट। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
दाहिने से छोड़ूंगा, एक चली गई, रुका, फिर से नंबर 2, छोड़ दिया, नंबर 3, छोड़ दिया, 4, 5, 6, 7, अंदर। समझे? जैसे आप हफिंग टेक्निक में की थी, और हालांकि कंप्लीट योगिक ब्रेथ में इतना नहीं किया था फ्रंट की तरफ, बट नाउ यू डू इट। कारण ये है कि जब आप ये स्क्वीजिंग करोगे तो लंग्स के अलग अलग हिस्से में प्रेशर पड़ेगा, दबाव आएगा, दबाव से लंग्स में कहीं भी कुछ होगा तो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने का प्रयत्न करेगा। तो ये स्क्वीज करते रहिए, ऊपर की तरफ लाते हुए, जैसे हफिंग टेक्निक में सिखाया था। इसको भी 5 साइकिल करिए। डॉक्टर रीटा करते जाइए, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। डॉक्टर राधा आप भी करिए। करिए विद्युत जी, बैठने से नहीं होगा। स्क्वीज करते जाइए अलग अलग जगह में, सामने की तरफ। आइडियली नीचे की तरफ से शुरू करिए, ऊपर की तरफ लाते जाइए। छाती की तरफ आएंगे, थोड़ा और ज्यादा स्क्वीज कर लीजिए, जितना बॉडी कंफर्टेबल है। विद्युत जी करिए, ऐसे नहीं होगा। ओ माय गॉड, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, सॉरी, मुझे लगा भूल गया रिकॉर्डिंग करना। सॉरी जी। तो इस साइकिल को भी 5 बार रिपीट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरू में 5 बार रिपीट एक्सहेल, नो स्क्वीजिंग, सो यू गेट इनटू द रिदम उसके। कैसे करना, उसकी एक चलन में आ जाएंगे। उसके बाद में आपने स्क्वीज करना शुरू किया। स्क्वीज करते हुए आपने 5 साइकिल्स कर ली पूरी। एक साइकिल में क्या, आपने बाएं से छोड़ा एक बार, फिर प्रेशर स्क्वीज करते हुए सेकंड, स्क्वीज करते हुए 3, 4, 5, फिर लीजिए सांस, बंद करिए बाएं को, दाहिने से छोड़िए, एक पूरा छोड़ दीजिए, आराम से एकदम पेट रिलैक्स करके छोड़िए। पूरा चला गया, पेट को रिलैक्स करिए, फिर से स्क्वीज करिए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर बाएं से छोड़ा, पूरा छोड़ दिया एक बार, पेट को रिलैक्स किया, 1, फिर से 2, फिर 3, 4, 5। मुझे देखिए मैं कितना जोर लगा रहा हूं, अभी देखिए आप लोग देख सकते हो तो। देखिए कितना जोर लगा रहा हूं, 1, 2, 3, 4। किंतु आपको इतना जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका, यू आर नॉट यूज टू इट, यू आर नॉट हैबिचुएटेड। मैं ये सब क्रियाएं बहुत वर्षों से कर रहा हूं, तो माई बॉडी कैन टेक मोर ऑफ दिस।
you can build up this capacity in your body as well, slowly over time. And then you can use it. क्योंकि आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो इसका मतलब आपकी पूरी श्वास की जो जो भी जहां जहां प्रेशर पड़ेगा वो उसको नाड़ियों को क्लेंस करना शुरू करेगा, श्वासकोश को, लंग्स को क्लियर करना शुरू करेगा। प्रेशर डालेगा, इट विल मूव एवरीथिंग आउट। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कौन सा होगा, क्या होगा, कौन बता सकता है? थर्ड पार्ट में क्या होगा? स्पाइन को परफेक्ट, परफेक्ट रचना जी, एग्जैक्टली। सो नाउ यू ब्रिंग योर अटेंशन टू द स्पाइन। तो स्पाइन में कृष्णास फ्लूट मनूवर। तो पहला पहला स्क्वीज आपका मूलाधार के एरिया में, टेल बोन के एरिया में। सेकंड स्क्वीज स्वादिष्टान के एरिया में, अलोंग द स्पाइन, मूलाधार से करीब 2 अंगुल ऊपर। फिर उससे 4 अंगुल ऊपर ये आ गया मणिपुरा। फिर उससे ऊपर आपका आ गया अनाहत। फिर उसके ऊपर आ गया आपका विशुद्धि। तो एक एक चक्र के हिसाब से आप करते जाइए। और यदि आपका बॉडी केपेबल है, कर सकते हो, तो यू कैन एक्चुअली डू इट इन योर थर्ड आई, सिक्स्थ चक्र एज वेल। बट अभी मत करिए, अभी खाली 5 तक करिए, इट इज गुड इनफ। आगे जाके जब आप इसको समझ जाओगे, बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, देन यू कैन ट्राई टू टेक इट हायर। अभी 5 तक लाइए, नो प्रॉब्लम। बट द स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। पूरी सांस छोड़ दीजिए, पूरी चली गई। ब्रिंग योर, पहली सांस खाली छोड़ दी, उसमें कुछ स्क्वीज नहीं करना, पूरी चली गई। अब फिर मूलाधार, मूलाधार के लिए बोलूंगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीद इन। अब दाहिने से छोड़िए, अटेंशन ऑन द स्पाइन, पूरी चली गई। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लीजिए, दाहिना ब्लॉक किया, बाएं से पूरी छोड़ दीजिए, पूरी चली गई। 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीद इन। अब इसी को चलाते रहिए, 5 साइकिल्स करिए। डू द स्क्वीजिंग अप अलोंग द स्पाइन, एंड देन उसके बाद में 5 बार करिए, पूरी पूरी रिपीट करिए 5 बार। अपने आप करिए, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करिए। कुछ प्रश्न रहा तो मुझसे पूछिएगा। एंड देन फील द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ योर ब्रेथ। इमीडिएटली आप देखोगे कुछ फर्क है आपके श्वास में। करिए, करने से मालूम पड़ेगा। अनुराग जी चेहरा मत देखिए, करिए। करिए करिए, छोड़िए मत। 5 बार करना है पूरा। ओ, ओ,
ओम। किसने कर ली 5 बार? दिनेश जी, क्या आपके अनुभव में आया? आपके अवेयरनेस में क्या आ रहा है? अनम्यूट करिए। जो नाक से पानी गिरता था वो जो खत्म हो गया, अब अच्छा, नहीं गिर रहा। इसके अलावा सांस में कुछ फर्क दिखा आपको? गहरी गहरी हो गई, डीप हो गई सांस। अच्छा, गहरी हो गई, वेरी गुड। एनीवन एल्स? विद्युत जी, आप तो अनुलोम विलोम करते हो, इसके साथ गुरु में क्या फर्क देख रहे हो आप? गुरु जी प्रणाम। राम राम जी। इससे पहले मेरा आई यूज टू ब्रेथ इन राइट नोज, लेफ्ट नोज से थोड़ा बहुत इनहेल एक्सेल हो रहा था, आई मीन नॉर्मल। इससे पहले जस्ट बिफोर दिस डूइंग दिस क्रिया। सो ये 5 बार करने के बाद अभी मैं फील कर रहा हूँ कि दोनों नाक चल रही से है। बराबर चल रही है और निकल भी रहा है। सांस में क्या फर्क दिख रहा है? और इसके अलावा ये अब तो सुषुम्ना एक्टिव हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, सांस राकेश। सांस सॉरी। लंबा हो गया गुरु जी। ओके। राकेश जी। हाँ सर, गुरुजी प्रणाम। राम राम जी। हाँ गुरुजी, मैं ये बोल रहा था कि पहले मेरा चंद्र स्वर चल रहा था, सूर्य स्वर स्वर चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? और किसी ने कुछ नोटिस किया? Lungs are expanding, more. And I just feel like the balloon is just expanding very beautifully and Very good. contracting very nicely also. Are you also noticing that your breathing is much easier than before? Yes, बहुत yes, आसान हो गई है ना? yes, yeah. Your breath is feeling much lighter. And सर it's ब्रेथ बहुत डीप हो गया है और दोनों नॉस्ट्रल से हो रहा है। हाँ, डीप और तो हो गया है, नॉस्ट्रल से भी हो रहा है, और लाइट हो गई है ब्रेथ। नोटिस कर और रहे हो बहुत आप? इजीली हो रहा है। लाइक इजी मैं हो तो रही है, रेगुलर हाँ। प्राणायाम प्रैक्टिशनर हूँ, फिर भी लाइक जी, आई कैन फील द डिफरेंस। यस, दैट इज राइट, यू विल फील द डिफरेंस। तो ये बहुत पावरफुल क्रिया है। अब इस क्रिया को जब आप कुछ दिन कर लेंगे, ये सब सारी क्रियाएं कुछ दिन कर लेंगे, तब आपका शरीर देखेंगे कि थोड़ा कफ की मात्रा कम हो गई है, सांस इंप्रूव हो रही है। तब आप इस क्रिया को भी कम से कम डेली कर लें तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। सिर्फ दिस वन क्रिया, वंस यू कम टू दैट लेवल कि आपकी काफी अच्छी क्लियर हो गई है बॉडी, ब्रीदिंग इंप्रूव हो गई है, देन यू कैन डू जस्ट दिस। इसके 5 की जगह 10 रेपिटेशन कर लीजिए, 15 कर लीजिए, इवन बेटर। और रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, कभी सर्दी जुकाम लगी है, सांस में भारीपन लग रहा है, कंप्लीट योगिक ब्रेथ के साथ में ये कर लीजिए, आपकी सांस में तो प्रॉब्लम आपको लगेगी नहीं। सुषुम्ना आपका एक्टिव हो जाएगा। अभी जैसे विद्युत जी ने बोला, फिर रचना जी ने बोला कि दोनों नॉस्ट्रल्स चल रही हैं मोरलेस बराबर, इसका अर्थ है कि योर सुषुम्ना इज एक्टिव। अब आपका सुषुम्ना चल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। योगी तो इसके लिए बहुत क्रियाएं करते हैं कि उनका सुषुम्ना एक्टिव रहे, जितना उनका सुषुम्ना एक्टिव रहे, बिकॉज व्हेन योर सुषुम्ना इज एक्टिव यू कैन गेट इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट वेरी इजीली। ध्यान की तरह बहुत आराम से जा सकते हो आप। हाँ, डॉक्टर राधा बताएं। I observe one more thing also, जी। कि बहुत बार ऐसे होता था, कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स कोई करता है, जैसे घर वाले भी करते हैं, तो इट वाज वेरी इजी टू गेट एंग्री, बट फ्रॉम द टाइम आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, आई डिडंट इवन रिएक्ट टुडे इन द मॉर्निंग। मतलब सो नाइस। इट वाज बट वेरी सटल। डॉक्टर राधा, एक बात बताइए, जब आपको इतना अच्छा ये अवेयरनेस आई है तो यू शुड शेयर दिस इन द ग्रुप,
कितने लोगों को आपके जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपने लाभ देखे, यदि वो ग्रुप में शेयर करें तो कितने लोगों को वो इंस्पायर करता? यू I'll definitely write down. I'll put it down. प्लीज डू, यस। Yeah. Thank you. जी, नॉट एट ऑल। हाँ राकेश जी, आपका हाथ ऊपर है, बताएं। हाँ हेलो। मोर की आवाज आए। प्रणाम प्रणाम। बागा मोरनी बागा में मोर को क्या गाना? हाँ, बागा में मैं गुरु जी भापा हूँ ना, वहां बैठे पे मोर ज्यादा है। मोर, क्या गाना है वो? बागा में हुई रात रे। भूल गया हेलो गुरु गाना। जी। एक जमाने में बहुत पॉपुलर होता था ये गाना। लम्हे हेलो गुरु जी। जी जी। मेरे आसपास मोर ज्यादा है, इसीलिए आवाज आती है। मैं जी हाथ हाँ। से भी दाना खा जाती है। जी जी जी, अच्छा है, सुंदर, अच्छा लगता है, तो कोई तकलीफ नहीं है जी। कौन सी तो जगह रहते हो, इतनी सुंदर जगह रहते हो? ये ग्वालियर है, ग्वालियर। अच्छा। ग्वालियर है, मध्य प्रदेश, बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत सुंदर। हाँ, तो सांस में क्या देख रहे हो आप? कुछ उस सांस के बारे में बोल रहे हो राकेश जी? हाँ बहुत गहरी हो गई है मेरी। गहरी हो गई है, लाइट हो गई है सांस, है ना? हाँ सबने, बहुत ज्यादा लाइट। मोरले सबने नोटिस किया होगा कि योर ब्रीदिंग इज मच लाइटर। ये सुनो, यस यस। तो कन्विक्शन वाली आवाज नहीं आ रही, हाँ हाँ यस यस वाली आ रही है। नहीं सर, बहुत अच्छी होगी। मैंने बताया ना, ना? मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, फिर भी बहुत जी। फर्क आया है। दिस प्रैक्टिस हैज मेड ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो लाइक नॉर्मल अनुलोम विलोम करना और ये करना बहुत फर्क हाँ, है। बहुत बड़ा फर्क है। तो अनुलोम विलोम तो खुद भी नाड़ी शोधन करता। उसे मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था इसके बारे में कि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन को किंग ऑफ प्राणायाम बोलते हैं। किंतु देर आर सम अदर टेक्निक्स, इसके भी और डीपर टेक्निक्स हैं, जिसमें मैं और आगे की क्रियाओं में लेके जाता हूँ, इस प्रोग्राम में नहीं ले जाता। तो उसमें तो इट गोज फार फार डीपर। इतनी बढ़िया क्लेंजिंग होती है कि लगता है कि पूरा का पूरा जैसे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्री हो गया। फिर है, तो क्रियाएं जो चलती रहती है, शरीर अपना कफ का काम बनाता रहेगा, करता रहेगा, वो क्लेंजिंग अपन को करते रहना है। मोरनी बागा महूले सारी रात रे। भूल गया गाना। मोरिनी बागा में नाचे आधी रात में। वो मोरनी बागा यस। में नाच आधी आधी रात रात माँ में। मोरनी। या। माँ। तो राकेश जी तो शाम को भी सुन रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? ये क्लियर हो गया? थोड़ी देर करिए प्रैक्टिस, ऑब्जर्व करिए, क्या आपके समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो पूछिए मुझे। एक बार करिए अपने आप, थोड़ी देर करिए प्लीज, सब करिए, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द एक्सेल अप द स्पाइन एज यू स्क्वीज। अच्छा, अभी आप कर रहे हो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसको एक स्टेप आगे ले जाओ इस बार। इस बार आप करोगे 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3 एक साथ में, फिर 1 2 3 4 एक साथ में, 1 2 3 4 5 एक साथ में। तो माने पूरे में स्क्वीज मार रहे हो जैसे आप। सो डू इट लाइक दैट। नहीं समझे आप रचना जी? थोड़े आप कंफ्यूज लग रहे हो। क्लियर? सो नाउ स्क्वीज 1, देन 1 2 टुगेदर, देन 1 2 3 टुगेदर, इस तरह से। और जब हो जाए तो बताएं आपके ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है। ओम।
फिर अटेंशन के साथ करना है ना, ध्यान से ज्यादा देना है कि हम सारी चीजें स्क्वीज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट यू मीन ना। हाँ, तो जैसे पहले आप खाली मूलाधार में कर रहे थे, फिर स्वादिष्ठान में कर रहे थे, फिर मणिपुरा में कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो? मूलाधार, मूलाधार स्वादिष्ठान, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा अनहट, इस तरह से we make it intention here that way कि okay we are doing all three. Okay, but you also have to do it, it's not only in the mind, it's also in the body. नहीं, like हाँ, मतलब intense focus उधर ले जाना है कि okay I'm squeezing this and then the body start that way. तो ये कर रहे हो, ये करके आप देखोगे कि आपकी सांस और फ्री लगेगी, आपको इजी लगेगी। इन बहुतों बहुतों को तो लगता है कि पहले इतनी अच्छी क्लियर ब्रेथ कभी मिली नहीं हो, जैसे इन सम ऑफ द प्रोग्राम्स जब ये सिखाता हूँ तो सम पीपल टेल मी कि लगता है कि ऐसी कभी इतनी अच्छी सुंदर सांस कभी नहीं आई। थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद में फिर वापस अपना वो सुषुम्ना मतलब ब्लॉक। पहले जब वो मूल बंद पे आप कहते हैं तो मूल बंद को, पर मूल बंद में मतलब हिप्स में वो स्क्वीज फील करना है, हाँ जी, और फिर वो स्पाइन में वो स्क्वीज फील करना है ना, दैट्स हाउ द ब्रेथ आउट ना, जी वैसे करना है ना। जी हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेचुरली। गुरुजी ठीक 3 जी, तक तो हो जाता है, मणिपुरा तक। अनाहत कभी कभी मुश्किल से आ रहा अच्छा, है। तो उसका दूसरा तरीका करिए फिर आप। पहला स्क्वीज जब करते हैं तो मूलाधार स्वादिष्ठान एक साथ कर लीजिए। सेकंड करते हैं जब मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहट मणिपुर अनाहट एक साथ कर लीजिए। फिर थर्ड स्क्वीज में पांचों तक कर लीजिए, है ना। तो यदि आपके 3 ही बार स्क्वीज हो सकता है तो पहले स्क्वीज में मूलाधार स्वादिष्ठान, सेकंड स्क्वीज में मणिपुरा और अनहाट भी कर लीजिए, थर्ड स्क्वीज में पांचों कर लीजिए, है ना। समझे आप विद्युत जी? वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? सो टुडे दिस इज द लास्ट डे ऑफ द फ्री बेसिक प्रोग्राम। कल हो सकता है कि कल ब्रेक लेते हैं और परसों से फिर अपन शुरू करेंगे एडवांस्ड कोर्स का कार्यक्रम। तो आप में से कोई जुड़ना चाह रहा है एडवांस कोर्स में? दिनेश जी, मीना जी, हाँ, एनीवन एल्स? गुरुजी मैं रचना जी, जोड़ना चाहता हूँ। विद्युत जी, हाँ मैं आपको मैसेज करूंगा। ठीक है। और ये 7 डेज का प्रोग्राम है ना गुरुजी? ये 7 डेज होगा, हाँ जी, हाँ 7। जी जी गुरुजी। जी, एनीबडी एल्स? और कोई जुड़ना चाह रहा है एडवांस कोर्स में? तो जैसे कि पहले भी बताया है, यदि आप लोग 3100 का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इट विल हेल्प मी टू कैरी ऑन विथ माय वर्क इन इन वट एवर वे आई एम एबल टू कैरी ऑन। नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। तो एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ बोलना हो? हाँ, चंद्रजीत जी कुछ बोल रहे हो आप? चंद्रजीत यादव, आपने हाथ उठाया। Yes, sir. Actually, you had asked me to ask that if someone wants to join the advanced course or not. जी So in that हाँ, context, I have raised the हाँ hand बोलिए बोलिए बोलिए, टेल मी। lying there. So what do you want to say? You want to do it, okay. You want to say that you wish to do it, okay, fine. Yeah, correct. हाँ, तो you're welcome to do it. Like I said, we expect a contribution of 3100। करें तो अच्छा है, नहीं करें, आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास इफ यू आर टू पुअर टू अफोर्ड इट, दैट इज ओके, फ्री में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट लाइक आई सेड, देर आर कॉस्ट्स इन्वॉल्व, सो इफ यू हेल्प डिफ्रे द कॉस्ट, कवर द कॉस्ट, तो आप लोगों का बहुत कृपा होगी। ठीक Yeah, है, accepted. Yeah. ठीक है, शैल वी एंड? और कोई प्रश्न नहीं है तो वी एंड फॉर टुडे। दिनेश जी कुछ बोल रहे हो आप? जी सर, कि अगर सांस अच्छी हो जाएगी, फ्लूट की आवाज भी अच्छी हो जाएगी। वो बहुत बड़ा सांस फर्क पड़ेगा, हाँ हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी सांस में इंप्रूवमेंट आएगा, यू विल नोटिस अब। हाँ एग्जैक्टली, फ्लूट, हाँ फ्लूट, जैसे फ्लूट के अंदर में यदि पानी रहेगा तो फ्लूट से आवाज नहीं आएगी ठीक से। उसी तरह से अपने शरीर में भी यदि विशेषकर आपके सुषुम्ना नाड़ी में यदि कोई भी तरह का फ्लेम वगैरह रहेगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस विल नॉट बी सो गुड। और ये जब क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आप देखते हो ना, मेरी आवाज काफी क्लियर लगती होगी आपको। आज हाँ इतनी
हमेशा इतनी क्लियर नहीं थी। ये करते करते, क्रियाएं करते करते ऐसी स्थिति में आई कि नाउ इट्स सो मच बेटर। तो पहले जो गाने गाना चाहता था, गा नहीं सकता था, नाउ आई कैन सिंग मेनी ऑफ दोस सॉन्ग्स सो मच मोर इजिली। मे बी आप सुनना चाहोगे कोई गाना? मे बी आई ट्राई अ लिटिल, कोई सा गाना। बोलो, आप कौन सा गाना सुनाओ? सुनाइए सुनाइए सर। कौन सा गाना सुनाओ, बोलिए। जो अ- भी सुनाइए, जो आप अच्छा गाते। नहीं हो, अच्छा नहीं होगा तो मुझे ज्यादा गाली मत दीजिएगा। नहीं नहीं, आप सुनाइए, विल एंजॉय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना जीना इसी का किसी नाम का। है। ला 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 ला। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा जिंदा है हमी से नाम प्यार का। जो मर के भी किसी को याद याद आएंगे, आए, किसी की किसी की मुस्कुराहट मुस्कुराहटों पे छाएंगे। कहेगा फूल हर कली से कली बार से बार बार, बार। जीना जीना इसी का किसी नाम का है। नाम है। मैं अपने घर में नहीं हूँ, किसी और के घर में हूँ, तो गला थोड़ा दबा के बुगा रहा हूँ। बट एनीवे, आई आई थिंक यू कैन मेक आउट इट्स नॉट सो बैड। तो नो सर, इट्स वेरी गुड। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता बहुत हूँ आप लोगों से एडवांस कोर्स में मैसेज भेज देना जो जो जुड़ना चाहते हैं, और जो जी सर। कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं, मैंने लिंक भेजा हुआ है, कैसे कर सकते हो आप कंट्रीब्यूशन भेज देना। सो दैट कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको वीडियोस भी मिलेंगी आगे की। बाकी प्रोग्राम तो कर ही सकते हो, और कंट्रीब्यूशन नहीं भेजोगे 3,000 का, तो फिर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। ये एक बैरियर रखा हुआ है खाली। वीडियोस मतलब सेशन की वीडियोस। इस सेशन की जो वीडियोस रिकॉर्डिंग होती है, दे विल ओनली बी गिवन टू दोज हु आर एबल टू कंट्रीब्यूट 3,100, जो एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन रखा है हमने। मिनिमम ओके। कंट्रीब्यूशन रखा है, बट इट इज नॉट अ बैरियर, क्योंकि जो यस। इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो लाभ उठाएं। हाँ, यही जी चीज जी, है। नहीं, दैट्स अ गुड, वेरी गुड नोबल कॉज। यस। यस। ठीक है जी, बहुत बधाइयाँ आपने किया, आई और सेंड बहुत यू द शुक्र, मैसेज बहुत भेजो। धन जी, बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाते रहोगे और अपने श्वासों को और अच्छा करते रहोगे। धन्यवाद गुरु सर। जी, नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक थोड़ा सा समझना जी। था। जी बोलिए। आ, अगर ये सुषुम्ना से अगर सांस लेते हैं, सांस इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो इसमें सुषुम्ना क्लींजिंग होता है। हाँ जी, अवश्य, एकदम होता है, सुषुम्ना सौ से प्रतिशत होता है। तो गुरु जी, इसका फायदा क्या पहुंचेगा शरीर को, मैंने आपको बताया मन ना, को? सुषुम्ना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जी। सुषुम्ना जितना क्लियर होता जाएगा, आपके चक्र क्लियर होने लग जाएंगे। चक्र जितने क्लियर होने लग जाएंगे, आपका जीवन में बैलेंस आ जाएगा। आपका माइंड आपको जितना ट्रबल करता है, एक जगह अटका हुआ है, वो सब चीज बदलने लग जाएगी। तो सुषुम्ना इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ी। जितनी आपकी सुषुम्ना एक्टिव है, जितनी आराम से फ्लो कर रही है, जितना उसमें जो भी है अटका हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। जी, ठीक है जी, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। एंड आशा करता हूँ आपसे फिर मिलना होगा। सर, एडवांस ये नमस्कार। दोनों कॉम्प्लीमेंट। दिन का रिकॉर्डिंग, कल का और आज का, ये ग्रुप में आ डाल जाएगा दिया ना? मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ग्रुप में अच्छा, देखना। कल, कल का। कल डाल दिया था। कल डाल अच्छा, दिया था आज मैंने। का तो अभी आ जाएगा। आज का यस। थोड़ी देर बाद में रहेगा। आज ठीक ठीक है। है जी। अच्छा प्रणाम। जी, राम राम, राम बहुत बहुत राम। आप बहुत बहुत धन्य आभार। बहुत धन्यवाद।